Hello and welcome to the MPS Academy official YouTube site, and this is class 10 history chapter 1 lecture 3, and yes, it is me Vijay Kumar Chaudhary, and today we are going to discuss two topics, and that is unification of Italy and unification of Germany, right? So first, unification of Italy, and this is the map. Just have a look at it. Yes, two maps are there, 1858 and 1859 to 1870. The first map is here, which is not unified. Italy, it is Italian states, and the second one is the unified Italy. So how Italy became a nation, means after being several states, how it became a nation, we are going to read it. So first of all, nationalists in Italy. The Italian were inspired by the French Revolution, and Congress of Vienna kept Italy separated. Australia controlled portions of northern Italy. Other independent states kept unification hard to do. A group of Italians tried to keep it alive. This group was called the Risorgimento, or the Resurgence, or secret society. So these are the things. तो मतलब फ्रांस की क्रांति से इंस्पायर हुए थे. वे प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि papal states were added to Italy by 1870, and Austria ran out of Italy in 1866. Few Italians had experienced self government, and there were cultural differences between the south and the north. मतलब नॉर्थ इटाली और साउथ इटली में सांस्कृतिक अंतर भी था. नॉर्थ वाज मोर इंडस्ट्रियल एंड साउथ वाज एग्रीकल्चरल. तो दोनों में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कई सारी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी यूनिफाई होने में. पपाल स्टेट जो सबसे बड़ी स्टेट थी, वहाँ पर पोप शासन किया करते थे, वो 1870 में इटली में ऐड हो गए. ऑस्ट्रेलिया जो है इटली को कंट्रोल करता था, नॉर्दर्न इटली को, तो वो बाहर चला गया. और भी प्रॉब्लम्स क्या हैं देखते हैं. बैरियर्स टू इटालियन नेशनलिज्म. तो उस समय इटली वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में बटा हुआ था. एंड इटली डिड नॉट थ्रेटन द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, और ना ही मतलब शक्ति, कोई बहुत बड़ी शक्ति उभर के आया ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था. आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, इटली वाज मेड अप ऑफ 9 डिफरेंट स्टेट्स. वियना के कांग्रेस के बाद 9 अलग अलग राज्यों में बने थे. और वो कौन कौन से थे? पिडमॉन्ट, सार्दिनिया, वेनेशिया, लोम्बार्डी, द पोप एंड द ऑस्ट्रियन ज़ोलॉन. तो सबसे बड़ी बात जो हम कहने जा रहे हैं वो है इनके बारे में, और ये हैं जिसेपी माज़नी, प्रॉफिट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. यूँ कहें कि इटालियन यूनिफिकेशन की ये architect थे. So he was a member of Carbonari, and the Carbonari was a secret group which used to violence to obtain what it wanted. तो Carbonari group के थे. He formed Young Italy and made up of young people whose job it was to arouse enthusiasm for United Nation. Tried revolution but it failed. तो कई सारे revolutions इन्होंने किया, बहुत सारे, लेकिन वो फेल हो गए. अगले स्लाइड में और देखेंगे क्या क्या इन्होंने किया, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई. ठीक. So he formed the Young Italy movement, forced Austria out of Lombardy and Venetia, seized control of Rome. A republic was formed by Mazzini and 2 other leaders. His victories were not long lived, and Austrian gained control of northern state. Only Sardinia remained independent. Got it? Okay, now another one is Giuseppe Garibaldi. Okay, the sword of Italian unification. Italy के एकीकरण का तलवार. He is one of the most important figure over here. So Garibaldi first invaded Sicily, then urged them to join Piedmont, Sardinia under the leadership of Victor Emmanuel. Garibaldi handed over all conquered lands to Victor Emmanuel. Okay, तो गरीबाल्दी ने क्या क्या किया? पहले तो उन्होंने सार्दिनिया, पिडमॉन्ट सार्दिनिया जो कि राजा के अंदर था, अलग अलग राज्य थे, सिसिली पर हमला किया और उनको कहा कि भैया सार्दिनिया में जुट जाओ, यानी साउथ को यूनिफाई किया. तो साउदर्न हाफ ऑफ इटली वॉज मेड अप ऑफ किंगडम ऑफ द 2 Sicilies. So Giuseppe Garibaldi was the leader of nationalistic movement, formed an army of 1,000 men and captured Sicily and Naples. फिर papal state की तरफ वो मार्च किए. Cavour जो thought that Garibaldi, Cavour कौन थे भाई? इटली के प्रधानमंत्री थे. thought that Garibaldi was becoming too popular and set up his own republic. Garibaldi stepped aside for सर्दिनिया. फिर सर्दिनिया से वो बाहर हो गए और अलायंस किया फ्रांस के साथ to defeat Austria and unify its northern territories. साउथ तो हो ही चुका था, नॉर्थ को यूनिफाई करने की बात थी. तो इन साउदर्न पार्ट जिसेपी गरिबाल्दी led the movement by involving local peasant support to drive out the Spanish rulers. Thus the process of unification has completed with the crowning of the king Victor Emmanuel. Take his Victor Emmanuel II. So now what happened? So this way we can say that Giuseppe Garibaldi united the south and as well as the north. Now we will see what were the problems faced by united Italy.
So Victor Emmanuel II, he was the king of Italy in a constitutional monarch. He had okay, and the right to vote was limited to upper and middle class property holders. केवल जो संपत्ति जिसके पास है वही वोट कर सकते थे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. ओके, मैनी कैथलिक्स जो थे, बहुत सारे ऐसे कैथलिक्स थे जो न्यू नेशन यानी जो नए नेशन थी उसमें पार्टिसिपेट करने में, हिस्सा लेने में कतरा रहे थे. यहाँ तक कि पोप जो रोमन अम्पायर के पोप थे वो भी. फिर ब्राइबरी और करप्शन, घूसखोरी और भ्रष्टाचार तो गरीबों में बढ़ा हुआ था, अनएजुकेटेड लोगों में, लोअर क्लास के लोगों में. कुछ इटालियन स्पीकिंग ऐसे लोग थे, इटालियन बोलने वाले लोग थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए नहीं थे. और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि इटली को वर्ल्ड पावर बनना चाहिए. इटली में बहुत सारी दिक्कतें थी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं था, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी, कीमतें बहुत ज़्यादा थी और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को. ओके, एक बार हम रिव्यू देखते हैं. व्हाट इज़ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मीन्स people who believe that people of a single nationality should unite under a single government. Okay, तो गोल ऑफ नेशनलिस्ट क्या है? टू क्रिएट अ नेशन स्टेट. तो नेशनलिस्ट का गोल है एक नेशन स्टेट बनाना जो कि गरिबाल्दी और जिसपे माजिनी ने मिलके नॉर्थ और साउथ को यूनिफाई करके इटली को एक नेशन स्टेट बना दिया. ठीक. बॉन्ड्स दैट क्रिएट अ नेशन स्टेट. कौन कौन सी चीज़ें नेशन स्टेट बनाती है? वो होती है नेशनलिटी बनाती है, वो होता है लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम रिलीजन ना भी हो तो सेम ट्रेडिशन. आगे हम बात करते हैं जर्मन नेशनलिज्म की, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ओके, अभी मेन आइडिया क्या है कि इन द लेट 1800 ओटो वन बिस्मार्क ट्रांसपोर्ट जर्मनी फ्रॉम अ लूज कन्फेडरेशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स इनटू अ पावरफुल एम्पायर. तो इटली में हमने देखा दो लोग थे, जिसेपी गरिबाल्दी और क्या नाम है उनका, माजिनी. ओके, लेकिन यहाँ पर बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क, ठीक, कैसे उन्होंने किया, क्या क्या नीतियाँ लगाई और वो कौन थे, इन सभी चीज़ों में आखिर किन अवसरों को उन्होंने कैसे उपाय लिया. ये मैप आप देख लीजिए जर्मनी का जो यूनिफाइड नहीं था. ठीक है. आगे अगला स्लाइड्स हम देखते हैं. जर्मन कन्फेडरेशन. आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स की थी, जो 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना के बाद बनी थी, होली रोमन अम्पायर के बाद. ये बहुत ही लूज कन्फेडरेशन था, पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ 39 स्टेट्स था. इसमें दो सबसे बड़े राष्ट्र स्टेट थे, वो थे प्रूशिया और ऑस्ट्रियन अम्पायर. ठीक है, यानी 39 में सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो था प्रूशिया और ऑस्ट्रियन अम्पायर, और ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते थे, कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के. तो इनकी राइवलरी थी. और देखिए दोनों की शक्ति को देखते हैं. ऑस्ट्रियन अम्पायर मल्टीनेशनल अम्पायर था, यानी बहुत सारे राष्ट्रों के साथ था. प्रूशिया ये जर्मन पॉपुलेशन से बना हुआ राष्ट्र था. ऑस्ट्रियन अम्पायर वाज अ मेजर पावर इन यूरोप, उस समय सबसे बड़ी पावर थी. प्रूशिया का भी पावरफुल आर्मी था, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, स्ट्रॉन्ग किंग था और बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया था. और ऑस्ट्रिया के साथ क्या प्रॉब्लम थी, उसके इटली के साथ, वेनिशिया और लोम्बार्डी के साथ प्रॉब्लम चल रहा था. फ्रांस के साथ युद्ध, इटली और प्रूशिया के साथ युद्ध. तो ऑस्ट्रियन अम्पायर को काफ़ी सारे युद्ध लड़ने पड़े. अभी क्या हुआ आगे देखते हैं. अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि जर्मन नेशनलिज्म की बेसिस क्या थी. तो सबसे पहला पॉइंट था जर्मन लैंग्वेज, यानी जो जर्मन भाषा बोलते हैं. दूसरा था 1834 में जोल्वरीन का बनना. अब ये जोल्वरीन क्या है? कस्टम्स यूनियन दैट रिमूव्स टैरिफ्स ऑन प्रोडक्ट्स ट्रेडेड बिटवीन जर्मन स्टेट्स, यानी इकोनॉमिक यूनिटी हो गई. जोल्वरीन जो 39 स्टेट्स थे उसके बीच जो कस्टम्स था वो हटा दिया गया. बाय 1854 मेजॉरिटी ऑफ जर्मन इन्वॉल्व. तो इस जोल्वरीन में 1854 तक सारे जर्मन इन्वॉल्व हो गए, कल्चरल यूनिटी आ गई. ठीक, आगे देखते हैं. इफ देर इज गोइंग टू बी वन जर्मनी, विच मेजर पावर शुड लीड द फाइट फॉर यूनिफिकेशन. स्वाभाविक सी बात है प्रूसिया. और अगर प्रूसिया लीड कर रहा है तो इसका इटालियन काउंटर पार्ट कौन होगा, इटली से कौन सहयोग करेगा? पिडमोंट एंड सार्डिनिया साउथ में. ठीक है, साउथ इटली हेल्प किया. अब आगे देखते हैं कि सेटिंग द स्टेज फॉर जर्मन यूनिफिकेशन. पहला, रिवोल्यूशन ऑफ 1848, वहाँ पर लिबरल रिवोल्यूशन हुआ, डिज़ायर फॉर जर्मन यूनिफिकेशन बढ़ने लगी. दूसरा, प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म्स इन प्रूसिया, प्रूसिया में सुधार के वादे, जो लिबरल रिफॉर्म्स थे, उदारवादी रिफॉर्म्स थे. तीसरा, इकोनॉमिक अलायंस बिटवीन जर्मन स्टेट्स, यानी 39 स्टेट्स में इकोनॉमिक अलायंस में क्रिएशन ऑफ जोल्वरीन. ये तीनों चीज़ें जर्मन यूनिफिकेशन के लिए स्टेज सेट किया. अब यहाँ पर देखिए, ये हैं प्रूशियन गवर्नमेंट के दो महत्वपूर्ण लोग, किंग विल्हेम फर्स्ट एंड प्राइम मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क. ओके, इनके जो बातें हैं वो हम आगे अगले स्लाइड में करते हैं.
ठीक। तो किंग विलहम फर्स्ट और प्राइम मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। तो ओटो वॉन बिस्मार्क जो कि आर्किटेक्ट कहलाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया थे 1862 से लेकर 1890 तक। फिर नॉर्दर्न जर्मन कन्फेडरेशन के चांसलर बन गए 1867 में, और ये इन्हें आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता था। और इनका कहना था, द लेस पीपल नो अबाउट हाउ लॉज एंड सॉसेज आर मेड द बेटर दे विल स्लीप एट नाइट। यानी जितना लोग कानूनों के बारे में कम जाने उतना बेहतर सो सकेंगे। बिस्मार्क की फिलॉसफी क्या थी, वो किस आधार पे काम करते थे? ही वॉज नॉट लिबरल लाइक रिवोल्यूशनरीज, कंजर्वेटिव सपोर्टिव किंग ऑफ प्रूसिया, ज़्यादा उदारवादी नहीं थे, ठीक है। बिलीव्ड प्रूसिया डेस्टिन्ड टू लीड जर्मन पीपल टू यूनिफिकेशन, और उनका ये विश्वास था कि प्रूसिया ही जर्मन को यूनिफाई करेगा। और वो रियल पॉलिटिक यानी पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी, टफ पावर, नो रूम फॉर आइडियलिज्म, यूजिंग ब्लड एंड आयरन टू गेन जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक। बिल्ड्स अप प्रूशियन आर्मी। स्टेप क्या क्या लिया उन्होंने? बिस्मार्क बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड बिगिंस एडमिनिस्ट्रिंग अ पॉलिसी बेस्ड ऑन रियल पॉलिटिक। अगला स्टेप क्या था? डैनिश वार, डेनमार्क के साथ वार। फिर ऑस्ट्रो प्रूशियन वार, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया का वार। क्रिएशन ऑफ नॉर्दर्न जर्मन कन्फेडरेशन, और डिस्पैच कैटलिस्ट, ईएमएस डिस्पैच जो था वो कैटलिस्ट फॉर वार हो गया, और फ्रैंको प्रूशियन वार। फिर ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट और केजर विल्हम फर्स्ट का राज्याभिषेक। ये सब बातें थी। तो फर्स्ट एक्शन एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या लिया? किंग विलियम वन वॉज अनेबल टू पास रिफॉर्म्स एक्सपेंडिंग मिलिट्री थ्रू अ लिबरल पार्लियामेंट। ओके, यानी लिबरल पार्लियामेंट के थ्रू वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। जंकर्स यानी जो लैंड ऑनिंग क्लास थे, यानी जो ज़मींदार वर्ग थे, वो राजा का सपोर्ट कर रहे थे, और वो सभी स्ट्रांगली कंजर्वेटिव थे और लिबरल आइडियाज़ को का विरोध करते थे। बिस्मार्क डिक्लेयर्स दैट ही विल रूल विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, तो उन्होंने क्या कहा देखिए, जर्मनी डज नॉट लुक टू प्रूशियाज लिबरलिज्म बट टू हर पावर, नॉट बाय स्पीचेस एंड मेजोरिटीज विल द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे बी डिसाइडेड, दैट वाज द मिस्टेक ऑफ 1848 एंड 1849 बट बाय आयरन एंड ब्लड। यानी खून से हम यूनिफाई करेंगे, अब हमें लिबरलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी डैनिश वॉर की बात करते हैं। हॉलस्टीन पॉपुलेशन इज जर्मन, स्किल्सबैग मिक्सचर ऑफ जर्मन्स एंड डेन्स, दैट मीन्स डेनमार्क के लोग। तो डेनमार्क कॉन्स्टिट्यूशन इन 1863 annexes Schleswig for Denmark. Prussia and Austria protest new constitution and demand it to be revoked. War starts, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क। तो डेनमार्क के साथ युद्ध प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर लड़ा। क्यों? क्योंकि वो इस बात का विरोध करने लगे कि आप 1863 में जो स्केल्सविक को डेनमार्क के लिए आपने ये किया वो नहीं। तो रिजल्ट ऑफ डेनिश वॉर क्या था? ब्रीफ फाइट थी 3 मंथ्स की, 3 महीने तक लड़ी गई। डेनमार्क गिव्स अप स्केल्सविक एंड हॉलस्टेन जो उन्होंने कब्जा किया वो वापस दे दिया। डिसएग्रीमेंट्स ओवर हाउ टू स्प्लिट अप लैंड, इस पर डिसएग्रीमेंट थी। अल्टीमेटली प्रूशिया गेट्स स्केल्सविक एंड ऑस्ट्रिया गेट्स हॉलस्टेन। प्रूशिया को स्केल्सविक मिला और ऑस्ट्रिया को हॉलस्टेन। इंक्रीज नेशनल प्राइड अमंग्स प्रूशियन, और जब प्रूशिया को स्केल्सविक मिल गया तो उसमें लोगों में एक नेशनल प्राइड बना। सपोर्ट फॉर प्रूशिया एज हेड ऑफ न्यू जर्मन इंक्रीजेस, यही सब बात थी। बिस्मार्क्स बैकरूम डीलिंग्स, ये पीछे से उन्होंने क्या किया? बिस्मार्क प्रिपेयर्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट विद ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया से युद्ध करने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नेपोलियन III यानी फ्रांस में उनको न्यूट्रल रहने के लिए कहा। इटली के साथ यानी कैवोर जो कि पिडमॉन्ट के प्रधानमंत्री थे उनके साथ सांठगांठ की। प्रोवोक्स ऑस्ट्रिया इनटू डिक्लेयरिंग वॉर ऑन प्रूशिया, ऑस्ट्रिया को उकसाया, ऑस्ट्रिया को पीछे से उकसाया कि आप प्रूशिया पर हमला करवाइए 1866 में, और सेंटर्ड ऑन टेरिटोरियल इश्यूज। और 1866 में ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर हुआ, ऑल्सो नोन एज 7 वीक्स वॉर। ये 7 सप्ताह तक चला। तो प्रूशियन को इसमें एडवांटेज मिला। क्या एडवांटेज मिला? प्रूशिया के पास रेल रोड्स था यानी बेटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ यानी बेटर कम्युनिकेशन, और मॉडर्न वेपनरी थी। तो इन सभी का जो है फ़ायदा प्रूशिया को मिला। और ऑस्ट्रिया को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि नेपोलियन III इटली जो है वो साथ नहीं दे रहा था, कोई साथ नहीं आया। अभी एक मैप देखेंगे हम लोग। ये मैप है 7 वीक्स वॉर कैंपेन का। तो आप जो ब्लू कलर देख रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं वो है प्रूशियन एडवांस, यानी प्रूशिया की आर्मी जो है वो कैसे आगे बढ़ी। और रेड कलर जो देख रहे हैं वो है ऑस्ट्रिया का रिट्रीट होना, यानी पीछे हट गया ऑस्ट्रिया ही। ठीक, तो ये मैप आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा फुल स्क्रीन में देखिए, नीचे और भी बहुत सारे कीनोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगला जो स्लाइड है वो हमें ये बता रहा है कि रिजल्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। ओके, रिजल्ट्स ऑफ ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर। तो इसमें बैलेंस जो है वो पावर जो है वो
ऑस्ट्रिया से शिफ्ट होकर प्रूशिया की तरफ बढ़ गया। ट्रीटी ऑफ प्राग, प्राग की संधि, पीस ट्रीटी वार के अंत में हुआ, जिसमें जर्मन कॉन्फेडरेशन डिसॉल्व हो गया, ऑस्ट्रिया ने सरेंडर कर दिया और इटली को वेनेशिया मिल गई। ठीक। नाउ क्रिएशन ऑफ नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन, 1867 में नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन बना। कैसे बना? आफ्टर ऑस्ट्रो प्रूशियन वार नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स यूनाइट विद प्रूसिया टू फॉर्म नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन। प्रूशिया ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर के बाद ईच स्टेट हैज़ सेल्फ गवर्नमेंट, किंग ऑफ प्रूशिया इज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन। तो ये जो नॉर्थ में सारे स्टेट्स यूनिफाई हुए तो सभी स्टेट की अपनी सरकार थी और प्रूशिया के राजा किंग विलियम थे, वो प्रेसिडेंट होते थे कॉन्फेडरेशन के। एलिमिनेट्स द जर्मन कॉन्फेडरेशन लेड इन पार्ट बाय ऑस्ट्रिया, यानी जो ऑस्ट्रिया ने जो जर्मन को यूनाइट किया था अपने जर्मन भाषाई को, उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको त्याग दिया। ठीक। ये सब बातें हुई जिसे हम नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 1867 कह रहे हैं। आगे देखिए, अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि ईएमएस टेलीग्राम। अब ये जो टेलीग्राम था तो किंग विलियम रिस्पॉन्स टू टेलीग्राम फ्रॉम फ्रेंच, फ्रांस से एक टेलीग्राम आया था। तो बिस्मार्क ने विलियम का जो रिस्पॉन्स था, विलियम की जो बातें थी उसको अल्टर कर दिया और ऐसा बनाकर रिस्पॉन्स दिया ताकि वो फ्रांस को इंसल्ट की तरह लगे। ठीक, ध्यान से समझिए बात को। यानी ये बिस्मार्क की बैकरूम पॉलिटिक्स थी, सीधा पॉलिटिक्स करते थे। तो ये टेलीग्राम जो है वो पब्लिश हो गया और पब्लिश होने के बाद फ्रेंच के लोग जो है गुस्से में आ गए। नतीजा क्या हो गया? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, यानी फ्रांस की प्रूशिया के साथ वॉर हो गई। ऑल जर्मन स्टेट्स जॉइंड इन वॉर अगेंस्ट फ्रांस, फ्रांस के साथ जितने भी जर्मन स्टेट्स थे 1870-1871 के बीच 1 साल तक वॉर चला था, तो सारे जर्मन स्टेट फ्रांस के साथ युद्ध में एक साथ हो गए। नो आउटसाइड नेशन केम टू हेल्प फ्रांस, फ्रांस को मदद करने कोई दूसरा राष्ट्र नहीं आया। शॉर्ट बट डिसिसिव वॉर एंड जर्मन विक्ट्री। रिजल्ट ऑफ वॉर क्या हुआ? फ्रेंच एम्पायर कोलैप्सेस, फ्रांस लूजेज Alsace and Lorraine, France pays Germany 5 billion francs and German army occupies much of France. तो कुल मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ प्रूशिया को ना। अभी जर्मन एम्पायर में क्या हुआ? विलियम वन अपने आप को एम्पायर घोषित किए वर्सलीज के ग्राउंड में और जनवरी 1871 बर्लिन जो है राजधानी बनी। कॉन्स्टिट्यूशन दैट यूनाइट्स 25 जर्मन स्टेट्स इन फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन ईच स्टेट, एम्पायर हेडेड द गवर्नमेंट विद अ लॉट ऑफ पावर। तो यानी 25 जो 39 स्टेट्स थे उसमें 25 स्टेट्स एक हो गए। अब यहाँ पर ये मैप है, इस मैप को आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रूशिया था एंड प्रूशिया इज़ द जर्मनी। प्रूशिया पहले प्रूशिया और अभी जर्मनी। ओके, फिर जो येलो पार्ट है वो जो है उन्होंने प्रूशियन स्टेट जर्मन स्टेट को ज्वाइन किया। लाइट ग्रीन जो पार्ट देख रहे हैं वो जो है प्रूशिया ने कब्जा किया और सैफरन पार्ट जो है वो नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन में 1867 में प्रूशिया के साथ आया। नाउ बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट्स। अभी क्या हुआ? इन 1815 बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश्ड विद 5 ग्रेट पावर्स, पहले क्या थे? और चेंजेस बाय 1871। तो 1871 में क्या क्या चेंज हुए? ब्रिटेन एंड जर्मनी वेयर मोस्ट पावरफुल, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड इटली वेयर फार बिहाइंड। ओके, फ्रांस बीच में था। एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू स्टेट्स, इटली एंड जर्मनी, यानी ब्रिटेन और जर्मनी सबसे पावरफुल हुए, जर्मनी यानी प्रूशिया। ओके, ऑस्ट्रिया, रशिया और इटली बहुत पीछे रह गए और नए राष्ट्र का निर्माण हुआ और वो था जर्मनी और इटली। न्यू नेशंस बन गए अलग अलग राज्यों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, वी विल बी बैक सून। We'll be back soon with the final lecture of this chapter, and we are almost about to finish it. So be safe, be at home.